Someone once said, in whatever man does without God, किसी ने कभी तो कहा कि जो भी मनुष्य करता है बिना परमेश्वर के, either he will fail miserably या तो वो बुरी रीति से असफल हो जाता है, or succeed even more miserably. या फिर सफल हो जाता है और बुरी रीति से। This statement can be found true in most of the successful people's lives. और ये वाक्य जो है सत्य जान पड़ता है अधिकांश सफल लोगों के जीवन में। Some time back I was reading the interview of Boris Becker, कुछ समय पहले मैं बोरिस बेकर के इंटरव्यू को पढ़ रहा the था, famous tennis player. प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी। I was shocked to know मैं आश्चर्यचकित हो गया ये जानकर that he contemplated on committing कि suicide. उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा। The interviewer asked him, जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उनसे पूछा, he said, why did you even contemplate on committing suicide? क्यों आपने आत्महत्या के बारे में सोचा? He said, I was empty within myself. और उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने अंदर खाली था। I had already won Wimbledon twice. विंबलडन को 2 बार मैंने जीत लिया था, First time when I won, I was the youngest player ever. और पहली बार जब मैंने जीता था तो मैं सबसे छोटा खिलाड़ी I था। had the money, मेरे पास पैसा I था, had the fame, मेरे पास प्रसिद्धि थी, I had all that the pleasures that the money can buy. और जो पैसा खरीद सकता है वो सारा सुख विलास जो है मेरे पास था। But unfortunately, there was an emptiness that was eating me up from inside. लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे अंदर एक खालीपन था जो मुझको अंदर से ही खाए जा It रहा was था। so terrible, I contemplated on even committing suicide. ये इतना भयानक था, मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी। Sometime back, a young Indian actor committed suicide. और कुछ समय पहले एक युवक अभिनेता, भारतीय अभिनेता, उन्होंने आत्महत्या कर ली। He had the money, he had the fame, पैसा था उनके पास, नाम था, he had climbed the ladder of success, और सफलता की सीढ़ियों को उन्होंने चढ़ा था। but unfortunately he could not contain himself. लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए, He went out and committed suicide. जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। Hyundai Motors heir apparent committed suicide by jumping off a tall building. Hyundai मोटर्स के होने वाले मालिक ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने ऊंची इमारत से कूद कर जान दे दी। What did he lack for? क्या कमी थी उनके He जीवन had में? everything at his disposal, सब कुछ उनके जीवन में था, but emptiness was eating him up. लेकिन खालीपन खाए जा रहा था उनको। Most of us think that success means having all the pleasures that the world can offer. और ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि सफलता ये है जो हम दुनिया में हासिल कर लेते हैं। But once you get that success, लेकिन एक बार जब हमको मिल जाता है you realize that is not really success. तो फिर हमको जान पड़ता है कि ये सफलता नहीं है। The Bible gives us the great formula for good success. पवित्र शास्त्र में अच्छे सफलता के फॉर्मूला को दिया गया है। I want us to open our Bibles to Joshua chapter 1 verse 8. आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वां वाक्य। I'm going to read for us in the NKJ version. It says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। I want us to take quickly 3 points to know the formula for good success. और जल्दी से हम 3 पॉइंट्स को लेंगे अच्छी सफलता के फॉर्मूला को जानने के लिए। Number 1 is, according to the word, we need to by heart the word. और पहली बात है वचन के अनुसार देखिए, वचन को अपने चित्त में रखना बहुत जरूरी है। Verse 8 starts saying, "This book of the law shall not depart from your mouth." व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। God does not use empty words. परमेश्वर खाली शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। Whatever he says, he means it. जो भी वो कहते हैं उसको मानकर ही कहते हैं। God is commanding Joshua and telling him,
let not this book of the law depart from your mouth. यहोशू को आज्ञा देते हुए परमेश्वर कहते हैं व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, today most of us possess a Bible, आज कल हम ज्यादातर लोगों के पास बाइबल है, but it is rather unfortunate not everybody has fully read it. लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश लोगों ने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। We do not understand when we read the Bible, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम समझते नहीं and we हैं don't even make any efforts to know why we are not understanding. और हम प्रयास भी नहीं करते हैं जानने के लिए क्यों हम बाइबल को, पवित्र शास्त्र को समझ नहीं पा रहे The हैं। word of God says that we should know the word like the back of our hand. वचन में लिखा हुआ है कि हमको वचनों को जानना है, You need to by heart it. उसको जो है याद कर लेना है। If not by hearting, अगर आप याद नहीं कर सकते हैं, at least you are expected to read the entire Bible. लेकिन आपसे ये अपेक्षा है आप पूरी पवित्र शास्त्र पढ़िए तो। God wants you to know where, when, how God has spoken और things. देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान ले कहाँ पे, कैसे, किस संदर्भ में परमेश्वर ने क्या बात The की है। knowledge of the word is the number one point for success. और देखिए वचन का ज्ञान होना पहला पॉइंट है सफलता के लिए। Number two, दूसरी पॉइंट further down he says very beautifully, आगे बहुत सुंदर रीति से but लिखा you हुआ है, shall meditate in it day and night. इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। Listen to this carefully. ध्यान से सुन When लीजिएगा, you read the word जब आप वचन को पढ़ते हैं and memorize the word, और वचन को याद करते हैं it is good for you. आपके लिए बहुत अच्छा है। But when you meditate on it, लेकिन देखिए जब आप इस वचन पर मनन करते हैं it's best for you. तो आपके लिए ये उत्तम है। As you meditate, you will know the heart of God when he said what he said. और देखिए जब आप मनन करते हैं तब जाकर आप परमेश्वर के हृदय को समझ लेंगे क्यों उन्होंने कहा है जो उन्होंने कहा And the है। Holy Spirit opens to us the secrets of heaven concerning the word. और फिर पवित्र आत्मा जाकर जो है स्वर्ग के गुप्त बातों का खुलासा करते हैं। I challenge you today. आज मैं आपको चुनौती देता हूँ, Open the Bible. वचन को खोलिएगा Pick up a certain place for your life. और पवित्र शास्त्र को खोलिएगा, अपने जीवन के लिए एक स्थान को आप चुन लीजिएगा Read that place. और पवित्र शास्त्र में वो स्थान को पढ़ लीजिएगा Remember the verses. और उन वाक्यों को याद रखिएगा And then go out and meditate on every verse that you read. और फिर आगे चलकर जो है जो भी वाक्य को आपने पढ़ा हुआ है उन वाक्यों पर आप मनन कीजिएगा। It's like a cow eating the cud. ये देखिए उस गाय की तरह है जो अपने खाए हुए घास को चबाती है And after that it keeps on chewing the cud. और वो चबाती रहती है। You know, when it chews the cud, जब वो गाय चबाती रहती है that's when the best of the things come out of it. तब जाकर जो पोषण है वो पोषण मिल जाता है That's exactly how you would begin to experience. और वैसा ही अनुभव आप करोगे। God will open heavens to you. परमेश्वर स्वर्गों को आपके लिए खोल देंगे, He will speak to you expressly. वो आपसे बात करेंगे Only when you meditate on the अगर word. आप वचन को लेकर वचन पर मनन करो। Number 3. तीसरी बात, Number 1, by heart it, पहली बात जो है वचन को याद करो, memorize it. उसको याद करो, वचन को पढ़ो, उसको याद करो, Number 2, meditate on it. वचन पर मनन करो Allow the word to minister to you. और होने दे कि वचन आपकी सेवकाई करे। Number 3, तीसरी बात, just do it. वचन को करो। What does it say further down? आगे क्या लिखा हुआ है? It says that you may observe to do according to all that is written in it. इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की चौकसी करो। God expects you to memorize it, परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं कि आप वचन को याद करें, meditate on it, उसके ऊपर मनन करें and then go out and do it. और उसके बाद जाकर जो है उसके अनुसार करें। When you understand the heart of God, जब आप परमेश्वर के हृदय को समझ जाते when you हैं, understand the mind of God, परमेश्वर के मन को आप समझ जाते हैं, you will have the conviction to do those things which the Lord tells you. तो फिर आप में वो विश्वास होगा उन बातों को करने के लिए जो परमेश्वर कहते हैं आपसे करने के When लिए। you're not ministered by the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा ने आपकी सेवकाई ही नहीं की you है lack conviction. तो आपके अंदर वो विश्वास नहीं And that होगा lack of और conviction क्योंकि विश्वास आपके अंदर नहीं है does not allow you to
do things the way that it is expected. उसकी वजह से जो आपसे अपेक्षा की जाती है उस तरह से आप चीजों को फिर कर नहीं When you पाएंगे। do these three things, जब आप इन 3 बातों को करते हैं, the Lord promises two things. परमेश्वर 2 बातों को करने का वादा करते He हैं। says further down in the same verse, what he says, for then you will make your way prosperous. और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। Look at this, what it says. For then you will make your way prosperous. और लिखा हुआ है फिर जाकर तू तेरे सब काम सफल होंगे। He's saying, son Joshua, not me making the way, but your choice of by hearting, meditating and doing, that will make a way, your way prosperous. और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि यहोशू, क्योंकि तू वचन को जो है याद रखेगा, तू वचन पर मनन करेगा और तू वचन के अनुसार चलेगा, तब तू अपने राह को सफल बनाएगा। Number one, it will make your way prosperous. तेरे राह जो है अपने आप सफल हो जाएगी। Then further down he says, then you will have good success. और फिर अच्छी सफलता जो है तेरा भाग होगा। What is the good success? अच्छी सफलता क्या है? Good success is something that you have all those things, and most importantly, you have the peace and prosperity within your heart. और देखिए अच्छी सफलता ये है कि आपके पास में सब कुछ है, वो सब कुछ होने के साथ साथ आपके अंदर जो है शांति है और आपके अंदर समृद्धि है। You will not feel empty within yourself. आपके अंदर आपके हृदय में खालीपन नहीं होगा। God will bless you with the choicest blessings. परमेश्वर जो है बहुत ही सुंदर आशीषों से आपको नवाजेगा। Your victory shall be very great and very resounding. आपका जय जो है बहुत ही महान होगा। You will have the pleasures of this world. और इस दुनिया की अच्छी चीजों का अनुभव आप करोगे। More importantly, और इससे महत्वपूर्ण बात, you will have that peace and the prosperity, the joy that is unspeakable bubbling inside you. आपके अंदर वो शांति होगी, वो समृद्धि होगी और ऐसा आनंद होगा जिसका आप वर्णन नहीं कर पाओगे। And that is what is called the true success, my brothers and my और sisters. इसको ही सही मायने में सफलता बुलाते हैं मेरे And भाई the बहन। Lord wants to give it to you. और परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी सफलता हमारा भाग हो। This morning you need to make a choice इस सवेरे के वक्त आपको चुनना है how you would like to go about it. कि आप कैसा करना चाहेंगे। It's in your hand. ये आपके हाथों में है। God is ministering to you. परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं। Listen to me. सुनिएगा मेरी बात। Take up this challenge. आप इस चुनौती को ले लीजिएगा। By heart it. वचन को आप याद कीजिएगा। That means to say memorize it. इसका मतलब है आप उसको मेमोराइज कीजिएगा, Meditate on it. मनन कीजिएगा वचन पर And then do it. और फिर वचन को आप कीजिएगा। Memorize it, meditate on it and do it. आप जो है वचन को याद कीजिएगा, उस पर मनन कीजिएगा और जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अनुसार जो है आप करिएगा। That will give you good success. उसके वजह से आपको अच्छी सफलता With these मिलेगी। thoughts in heart and mind, और इन विचारों को अपने हृदय में और मनों में रखते I हुए want us to go into the weekend. वीकेंड में हम जाएंगे। May your day and week be great in the name of Jesus आपका दिन Christ. और आपका सप्ताह बहुत ही अच्छा जाए यीशु मसीह के नाम May you से। have a great Lord's Day tomorrow. आपका बहुत ही सुंदर परमेश्वर का दिन हो कल। May the Lord prepare you for the Lord's Day. परमेश्वर आपको तैयार करे परमेश्वर के दिन के लिए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।